हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होगे, घर में होगे और सुरक्षित होगे। बेटा, मैंने आपको कल जो डिस्कस करा था अबाउट सॉल्यूशंस प्लस टू में, उसमें पहला चैप्टर है जिसका पूरा नेम है डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन कल आपको बताई थी। मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चंस बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आ सकता है सभी बोर्ड्स में, सीबीएसई, पीएससीबी या कोई और बोर्ड है तो। बेसिक क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन द सब्जेक्टिव, जैसे व्हाट आर सॉल्यूशंस, राइट एग्जांपल्स, डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट आर मोलारिटी एटसेट्रा, इनकी डेफिनेशंस आ सकती है। हालांकि इनमें ज़्यादातर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। What is the effect of temperature on molality and other units of concentrations? Basic theoretical questions. How can you determine concentrations? That is the major part of the numericals. मैंने आपको पिछली शीट में कुछ एग्जांपल्स दिए numericals, वो शायद आपसे सॉल्व हुए भी हों या ना भी हुए हों, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है शायद नहीं हुए होंगे कुछ क्वेश्चंस, वो मैं आपको सॉल्व करके पेज पे भेज रहा हूँ। How can you determine concentrations? Define solubility, discuss types of solutions. Dear students, to answer all these questions, we have to start dilute solutions. और हो सकता है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन के आंसर आपको आते भी हों, बट मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, देन फिर मैं आपको एग्जाम्पल और असाइनमेंट शीट डिस्कस करूँगा। सो लेट्स सी, व्हाट आर सॉल्यूशंस, व्हाट आर मिक्सचर्स। बेसिकली सॉल्यूशन डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कभी आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए, देन सॉल्यूशंस डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग substances. Clear? It should be homogeneous and the component should be non-reacting. In other words, you can say it's a homogeneous mixture of solute and solvent that will give you solutions. This is the basic definition. Now what's the example of solution? So you have to see the mixture should be homogeneous and non-reacting. For example, salt in water, mixture of nitrogen and oxygen, non-reacting. ठीक है, sugar in water. But remember, like if we talk about HCl plus ammonia, this mixture is not a solution because it is reacting. And if we talk about salt plus oil, this mixture is also not a solution because it is not homogeneous. So you have आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा homogeneous है और कौन सा non-reacting है. Solute and solvent give you solution. Solute generally present in the lesser amount. Solvent generally present in the greater amount. लेकिन बेटा ये definition हमेशा सही नहीं है, आप जानते हो. Basically, solvent should be the component which have same state. Solvent defined as the component of a solution which have same state as that of the resulting solution, whether it is present in the lesser amount or in greater amount. Solvent वो component है जिसकी phase final solution की phase से match करते हैं. हाँ, अगर solute और solvent दोनों की phase same हो तो जो कम है वो solute है और जो ज़्यादा है वो solvent. Clear? So you can answer the first question कि define solution. कई बार आपसे पूछ देंगे कि solution और mixture में क्या फ़र्क है, तो आप बताओगे mixture heterogeneous भी हो सकते हैं, but solutions are always homogeneous. Now concentration of solution, it's a major part. किसी भी सॉल्यूशन को अगर आपने एक्सप्रेस्ड करना है देन यू हैव टू असाइन इट्स कंसंट्रेशन, और जिसके बेसिस पर आपने कभी पढ़ा होगा
किताबों में अक्सर लिखा रहता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड. These are two terms. Concentration of solutions or expressions of concentrations of solutions are basically representation of amount of solute present in the solution. Amount of solute present in the solution give you the concentration of the solution. Amount of solute with respect to amount of solvent और सॉल्यूशन. मेरे कहने का मतलब है पूरे सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जिसको आपने अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट देन यू कैन से इट्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. बेसिकली 5% से लेसर है तो आप उसको डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट कह लो. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट होगा सोल्यूट, अमाउंट कोई फिक्स नहीं है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज in terms of percentage, can be expressed in terms of strength of the solution. Mostly it is the weight over volume expression. Can be expressed in terms of mass fraction, mole fraction, molarity, normality, ppm, and some other units of concentration. Mostly these are in your NCERT syllabus. Normality is not given in the subjective part. So first of all, what do you basic meaning of these terms, इनका मतलब क्या है और इनको कैसे find out करेंगे. Let's see. Do you know the percentage? आप सभी जानते हो what percentage का meaning क्या है. Percentage means we have to find out with respect to 100. That's why it is also known as PPH, parts per 100. और कभी भी आपने किसी की परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, तो 100 से कंपैरिजन करना है. इन केस ऑफ सॉल्यूशंस परसेंटेज कैन बी फाइंड आउट एज मास परसेंट. कि बेटा हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ percentage. So it may be mass percent, it may be mass over volume percent, or it may be only volume percent. ठीक है. Mass percent means you have to take mass of solute divided by mass of solution into 100. Mass over volume percentage, take mass of solute, it should be given volume of solution into 100. And in case of volume percentage, both data should be given in terms of volume. What is the volume of solute, and then volume of solution into 100. Volume percentage is generally expressed for the liquid to liquid solutions. Mass percentage आप किसी भी टाइप में मेंशन कर सकते हो. और हाँ, अगर कभी किसी क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन ना हो, then always take mass percentage as a given or as a asked if it is not mentioned. ओके बेटा. सो परसेंटेज ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, इसको हम परसेंटेज से ही असाइन करेंगे. जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, शायद आप इसको बहुत प्रॉपर तरीका से कर लो. न्यूमेरिकल है, सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन. क्वेश्चन है फाइंड मास परसेंटेज ऑफ शुगर
in the aqueous solution, aqueous means solvent is water, aqueous solution having 20 gram sugar in 20 gram sugar in 180 gram water. So अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, this is the solute and this is the solvent. If you have to find out the mass percentage of sugar, then according to formula we have to write mass of the sugar and mass of the solution. बेटा यहाँ पे जो solution होगा, solution contains both component, water and sugar. So mass of the solution include both factors. So mass of the sugar take 20, mass of the solution is 20 plus 180, as a solute and solvent give you the mass of solution into 100, and finally after solving you get 10%. कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सोल्यूशन की जगह सिर्फ ये 180 रख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, बिकॉज इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सो सिंपली किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, वी कैन फाइंड आउट एज अकॉर्डिंगली. मास परसेंटेज, अगर मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो मास और वॉल्यूम इनटू 100 करना है. ठीक है, और अगर आपने वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है देन बोथ डेटा शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. जनरली volume percentage is asked in case of liquid to liquid solutions. ठीक है, next unit is the strength of solutions. Strength, जो ये strength term है, strength term का खुद ही मीनिंग होता है कि लाइक वी हैव टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के लिए ही स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं हम. अगर कोई सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है तो उसकी हम कह देते हैं स्ट्रेंथ कम है. इट इज़ बेसिकली फाइंड आउट एज वेट ऑफ सोल्यूट, मोस्टली इन ग्राम. वेट एंड मास केमिस्ट्री में दोनों सेम ही चीज़ें ली जाती हैं. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखने लगना कि लाइक वेट इट इंक्लूड्स ग्रेविटी. ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट एंड टेक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दिस रेशियो विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. समटाइम्स फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैन आल्सो बी written as volume of solution for very dilute solutions. अगर बहुत dilute solutions है तो solute negligible होगा almost. Okay, and mostly its unit is gram per liter, unit of strength. Now the next unit, if we talk about mass fraction. बेटा किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपने मास फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है देन इसका सिंपल सा मीनिंग है, फ्रैक्शन मीन्स रेशियो. फर्स्टली राइट मास ऑफ सोल्यूट एंड देन मास ऑफ सॉल्यूशन. बस मास ऑफ सॉल्यूशन में दोनों चीजें आ गई, सोल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, और इसकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन. मासेस गिवन होंगे, पुट कर दो. अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड करना है देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इट मीन इट इंक्लूड्स बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट बिकम्स द परसेंटेज, मास परसेंटेज. सो if you have to find out mass percentage and mass fraction is given, mass fraction multiplied by 100 will give you the mass percentage. It's a relation between two units. Okay, next is mole fraction. समझ रहे होंगे, एक बार पहले आप ये समझिए फिर आपको एग्जांपल्स करने हैं जो मैंने दिए वो तभी हो पाएंगे. Fraction again it means ratio. If we talk about mole fraction,
then in case of solution, mole fraction of solute आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा जा सकता है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट वाइज पूछा जाएगा। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन में जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो, बट हमारे सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चंस टू कंपोनेंट्स के ही आते हैं। अगर किसी को सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, दो तक तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इन सभी केसेस में सॉल्वेंट एक ही होता है, रिमेनिंग कंपोनेंट्स कंसिडर एज सोल्यूट्स। जैसे सपोज आपने पानी लिया, शुगर डाल दी, इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। शुगर इज द सोल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। मान लीजिए आपने इसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया, वो भी घुल जाएगा, वो भी होमोजेनियस है। नाउ सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर सोल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस टर्म जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। रिमेंबर इट इज नॉट एक्स, इट्स अ की, Greek word key. So when you find out the mole fraction, you have to mention mole fraction of solute or solvent. Suppose we have to find out mole fraction of solute, simply write number of moles of solute, and divide by total number of moles. Do you know total number of moles? That means the moles of solute as well as solvent. This ratio will give you the mole fraction of solute. And if we talk about mole fraction of solvent, put here number of moles of solvent and total number of moles. Okay? So, suppose अगर मैं यहाँ पे कोई जनरल सा solution ले लूँ, suppose we have a container. These are the number of moles of solute, capital N as a number of moles of solvent. ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। Then we can find out mole fraction of solute as n over n plus n. Mole fraction of solvent we can find out capital N over n plus n. Why? Individual moles divided by total. Now sum of these two, mole fraction of solute, mole fraction of solvent, if you add these two you get 1, because here is the only two components, and it is for always sum of the mole fractions of all the components present in the solution is always 1. While ratio of these two, mole fraction of solute, mole fraction of solvent, its ratio is same as that of their ratios of number of moles. Number of moles of solute, number of moles of solvent. मैंने यहाँ पे small n दिया है number of moles of solute, capital N दिया है number of moles of solvent. Again, mole fraction is the ratio of moles, so it has no unit. कोई आपसे पूछे what is the unit of mole fraction, आपने बोलना है no unit. इट्स अ रिलेटिव स्टडी। जब रिलेटिव स्टडी होती है किसी की तो क्या यूनिट है, दोनों ही मोल्स हैं, अगर आप रखोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा मैथमेटिकली, यू नो। क्लियर? मोल फ्रैक्शन। नाउ द मोस्ट अवेटेड टर्म्स और जिन पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं उनको डिस्कस कर दूं। द फर्स्ट वन, मोलारिटी represented by capital M. Molarity represented by capital M. This is the unit of concentration defined as number of moles of solute present in 1 liter of the solution. Number of moles of solute present in 1 liter of the solution always give you molarity.
Suppose you have a solution having n number of moles of solute and V is the volume of solution in a liter. Then remember, molarity give you number of moles over volume. Volume should be in liter, number of moles of solute or volume का ratio will be molarity. Unit of molarity, moles per liter is the unit of molarity, or sometimes molar word is also used as unit. Suppose the solution have 1 molarity, you can write it 1 m to represent the unit. लास्ट में कैपिटल M लिख दो तो यूनिट बन जाती है उसकी. Molarity defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution, but if volume of solution is V liter, V is a symbol, then the molarity can be written as number of moles over volume. इसकी जो यूनिट है बेटा मोल्स पर लीटर. तो जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में मोलारिटी फाइंड आउट करने को कहा जाएगा या आपने मोलारिटी फाइंड आउट करनी होगी, देन रिमेंबर molarity can be found out only and only when we have number of moles of solute and volume of the solution. Sometimes data is not given directly, so we have to convert. मान लीजिए आपको weight of solute दिया है, तो आपने प्लस में पढ़ा है weight of solute. How can you convert in terms of moles? Given weight divided by molecular weight. Suppose volume is not given directly, weight of the solution is given, then density of solution also should be given. Overall ये दो टर्म आपको चाहिए, इनका रेशियो कहलाएगा मोलैरिटी. वॉल्यूम नीचे है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है. बट एक चीज और है, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कहे थे उसमें एक क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. टेम्परेचर उन सभी यूनिट्स को इफेक्ट कर सकता है जिन यूनिट्स में वॉल्यूम आता है, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन जनरली वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन also would be increase. तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो ये रेशियो कम होगा ना. सो रिमेंबर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी. यू हैव टू राइट with the increase of temperature molarity of the solution decreases. Molarity of solution decreases with the increase of temperature. Why? Because with the increase of temperature volume also increases, so ratio decreases. This is the effect of temperature on molarity. Molarity is what? It's a unit of concentration of solutions. Now next term, molality. मोलारिटी ये बेटा आपने प्लस वन में भी पढ़े हैं. वहाँ पे कभी कभार स्कूलों में शायद कुछ क्वेश्चन आगे हों डिफाइन करने के लिए. यहाँ पे डिफाइन करने को तो शायद ही आएंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, इन द सब्जेक्टिव पार्ट. ऑब्जेक्टिव आई विल डिस्कस इन लेटर कि पहले आपको न्यूमेरिकल्स करने आ जाए, देन मैं आपको एक असाइनमेंट अटैच करके दूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे. उसमें डायरेक्ट नहीं निकालने को आता, उसमें थोड़ा घुमा फिरा के आएंगे. मोलैरिटी, इससे प्रीवियस यूनिट थी मोलैरिटी, उसमें यहाँ पे कैपिटल एम था, यहाँ पे स्मॉल एम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम एंड इट्स डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. वहाँ पे भी यही चीज थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of the solvent. Here is 1 kg weight of the solvent. और molarity जो थी, molarity R, जो molarity term था उसमें था यहाँ पे volume of the solution, molarity L, तो यहाँ पे weight of the solvent. और ये फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा. molality is a small m represented by number of moles of solute divided by weight of solvent
in kg. That is small m is equal to n over weight of solvent. ठीक है, but remember it is not for solution, weight of solvent only. It will give you molality. Its unit is what? Moles per kg और मोलल वर्ड यूज करेंगे यूनिट. अगर किसी सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो हम वहाँ पे लिख देंगे 1m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट मोलैलिटी. और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं है, इट्स अ वेट. वेट का टेम्परेचर से कोई खास रिलेशन नहीं होता. टेम्परेचर चेंज करो, वेट और मास कोई चेंज नहीं होता. इसीलिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी? रिमेंबर, नो इफेक्ट. टेम्परेचर को चेंज करने पर मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसीलिए बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी इज द बेटर यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस. अंडरस्टैंड? हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हालांकि दो अलग अलग यूनिट हैं. मोस्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी. बेटा आप देखते हो दवाइयाँ जो सिरप आते हैं खास तौर से, उनमें भी कंसंट्रेशन मेंशन होती है. वो भी तो एक टाइप के सॉल्यूशंस हैं. ऑलवेज मेंशन ईदर इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. ठीक है, चाहे सर्दी का टाइम हो, चाहे गर्मी का टाइम हो, पैकिंग का कोई भी टाइम रहा हो, उसकी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी और मास परसेंटेज सेम रहेगी. बट इफ वी टॉक अबाउट मोलैरिटी, पता चला कि सर्दियों की पैकिंग है तो वॉल्यूम कम था. ठीक है, और गर्मियों में आके वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैलिटी कम हो गई. मतलब वो चेंज होती रहेगी, मोलैलिटी चेंज नहीं होती. इन दोनों में क्या रिलेशन है मोलैलिटी और मोलैरिटी में? तो हम एक सिंबॉलिक फॉर्मूले के तौर पर देखते हैं. मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. मोल्स सोल्यूट के ही हैं और वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, जबकि मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के हैं, वेट सॉल्वेंट का लेना है और वो भी केजी में. तो अगर आप बेटा इनको डिवाइड कर दो, then what you get? You get weight of solvent, not solution, but volume of solution. बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इन दोनों को डेंसिटी लिख देते हैं, बट रिमेंबर इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज नॉट अ डेंसिटी. सो जब कभी भी आपको इनमें आपस में रिलेशन निकालना हो तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत से केसेस में डेटा डेंसिटी के टर्म में गिवन होता है. डेंसिटी आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर कहीं पे आपको कहा गया है, then remember it's a weight of solution divided by volume of solution, weight और mass of solution. accordingly हम उसको चेंज कर लेंगे. ठीक है बेटा, तो अगर आपको मास परसेंटेज, अगर आपको मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हो. अब इसमें रह गया नॉर्मलिटी एंड पीपीएम. ठीक है, ये मैं आपको कल डिस्कस करूँगा. अभी आप आज यहाँ तक चीज़ें स्टडी कर लो. हाँ, अभी मैं अगले वीडियो में जो आपको मैंने एग्जांपल्स दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, वो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ. ठीक है, और कुछ आप खुद से ट्राई करना. ओके, थैंक यू वेरी मच.